This is a flight booking website called fareboom.com, and this is a fare forecasting feature. What this thing does is predict flight prices using a sophisticated machine learning algorithm. It helps travelers make buying decisions. Should they buy now or later? But wait, why is it necessary to predict flight prices in the first place? And why do they constantly change? American Airlines, the largest U.S. carrier, can change about 500,000 prices every day. And sometimes, the prices for the same service class on the same flight can rise or fall multiple times within several days. So, what's going on? Obviously, airlines try to maximize their profits, just like any other business does. This means that carriers have to sell as many seats as possible for a flight and, at the same time, for the maximum price. It's inefficient if an aircraft takes off almost empty with a couple of expensive tickets sold. And it's also inefficient to occupy the entire aircraft, but for the lowest cost per seat. That's why airline revenue managers engage in a balancing act between finding the highest price and filling as many seats as possible. To reach this balance, airlines must first understand their customers. Carriers track traveler purchasing behavior, assuming that they are divided into two major groups: leisure and business travelers. And it looks pretty straightforward. Leisure travelers are sensitive to prices and plan their trips in advance, sometimes months before departure. So you have to sell cheaper tickets to leisure travelers and do it earlier. And this will help you fill more seats. Business travelers, on the other hand, need more flexibility and usually book days before departure. You'll have to increase the prices as the departure date approaches to efficiently capture the business segment of your customers. As the fare is employer-funded, business travelers don't care as much about cost. Not a very precise approximation of the customers, right? But if you look at the general smoothed-out trend of any airfare, you'll see this logic in action. The fare remains about the same for months before a departure. Then it starts growing in multiple distinct steps. These steps are caused by advance purchase discount requirements. If you fail to purchase a flight at least, say, 2 weeks in advance, the minimum fare remaining will get considerably higher for the same service class, whether it's economy, business, or first class. Usually a flight has multiple step increases as fares rise towards the departure date. This difference between fares helps divide leisure travelers who spend less and business travelers ready to pay more. However, the prices also dynamically change regardless of discount requirements, as airlines utilize another strategy that adds more peaks and valleys to this graph. Imagine there are 50 economy class seats on the aircraft for a given flight. Even though these seats belong to the same class, an airline doesn't want to sell all of them at the lowest cost, nor at the highest cost. Carriers divide all those 50 seats into multiple fare groups, or buckets. For instance, there will only be 5 seats at the lowest fare with minimum services and smallest bag allowances. Once these 5 seats are sold, the fare bucket is closed. You can no longer purchase a seat at that bargain basement price. But 45 seats with more services and bag allowances are still available at a higher cost in other buckets. They start filling up and then gradually close. So the prices go up no matter what as travelers purchase seats from higher fare buckets until the aircraft is fully packed, right? Nope. Sometimes the prices go down. If the only price direction was up as buckets filled, this would mean a lot of lost price-sensitive customers for airlines. And there wouldn't be the need for sophisticated machine learning algorithms to predict fares in the first place. Travelers would just have to purchase flights as early as possible. Besides gradually increasing prices, airlines track demand. How fast do those buckets get filled? Imagine you've sold 5 seats from the first bucket in a week, but then only a single traveler purchased the seat from the second bucket next week. If fewer people start buying out seats after a bucket or 2 are closed, the lower fare buckets may be opened again to invite more price-sensitive customers. Some of the available seats from higher-priced buckets would then move to the reopened lower bucket. And this works in the other direction as well. If the aircraft starts filling up too fast, the airline may close low-fare buckets to get more revenue, or even to prevent some people from buying these seats.
because there must be some room available for business travelers who will purchase their flights at a much higher cost right before departure. Advance purchase discounts and fare bucket motion are the two main drivers that complement each other and cause most of the price changes at airlines. And because demand dictates pricing logic, it may seem opaque to the average traveler since only the airline revenue manager knows what's going on with current demand and how fast those buckets fill up. But there are even more factors that impact dynamically changing prices. The fares within buckets can also change in reaction to various external conditions. If the cost of fuel increases, this may cause the entire base fare to rise as well. On top of that, airlines consider seasonal trends. If there are more people who fly for summer vacation to some destinations, the set of fares will be adjusted to this trend. This also happens if demand is likely to experience an interval increase at a specific destination. For example, Super Bowl or a rock festival will trigger revenue managers to manually increase fares as higher demand is anticipated for these dates. And finally, if some low-cost airline or other competitor opens a new flight, the competing flights will get cheaper, even at traditional airlines. This is how dynamic pricing at airlines works today. But things may change in the near future. The current pricing strategies that airlines use are based on broad rules. The simple idea behind these rules is to sell cheaper tickets to leisure, price-sensitive travelers and sell more expensive tickets to business travelers that don't care that much about prices. This straightforward logic has worked for years. With the arrival of new technologies, the old methods started aging fast. The past understanding of one traveler being price-sensitive, while the other is not, is very limited. There are many more nuances, and airlines realize that. But the distribution model in which travelers purchase tickets from travel agencies puts blinders on carriers, leaving them guessing exactly what their customer looks like. They mostly judge by demand and time of purchase. On the other hand, by directly interacting with customers, carriers can get a more granular and detailed view of the actual person looking for a flight. What other flights are they looking for? How often do they check prices? Which links do they click on? If airlines manage to tap into this data, they could use more advanced AI systems that define fully personalized prices. Since 2012, airlines have been slowly embarking on a new data exchange standard, New Distribution Capability, or NDC. It will allow airlines to receive more personal and detailed data about their customers and eventually tweak existing revenue strategies. This may render such tools as Fareboom's Price Predictor obsolete, as fares will be adapted to each individual traveler. The question is, are travelers themselves ready for such a change? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेलीलिंक बाय हमाद में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, वो भी क्या वक्त था जब इंसान घंटों का सफ़र दिनों में तय करता था। मगर जब दुनिया ने तरक्की करना शुरू की तो इंसान ने भी इजादात बनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इंसान ने एक बहुत अहम इजाद, जिसको आजकल के दौर में जहाज़ कहा जाता है, इजाद कर दिया। दोस्तों, जहाज़ के ज़रिए हम दुनिया भर में किसी भी कोने में जा सकते हैं, सिर्फ घंटों में या थोड़ी सी मिनट्स में। दोस्तों, जहाज़ की कंपनीज हर साल करोड़ों डॉलर्स कमाती है अपने इस मुनाफा बख्श कारोबार की वजह से। चुनांचे आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 बेस्ट एयरलाइन कंपनीज के बारे में बताऊंगा और उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में भी। तो हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। 10 नंबर पे आता है थाईलैंड का एक एयरवे, थाई एयरवेज। थाई सोरोनाबोमी एयरपोर्ट और सानवी मरकज फोकट बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर अपने मरकज से काम करती है। एयरलाइन और इसके ज़िली इदारों ने 95 तैयारों के बेड़े का इस्तेमाल करते हुए 37 ममालिक में 101 से ज़्यादा मंजिलें तय की, जो बोइंग और एयरबस दोनों के वसी जिस्म वाले तैयारी पर मुश्तमिल है। जबकि मातहत इदारा थाई मस्कुराहट
تنگ جسم طیارے چلاتی ہیں۔ 2013 تک بینکاک اور لاس اینجلس کے مابین سول کے قریب انجوین بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے خدمات انجام دی گئی، تاہم یہ 25 پر امریکہ کو اس سروس کو ختم ہونے اکتوبر 2015 تھائی لینڈ کا روٹ نیٹ ورک یورپ، وسطی ایشیا اور جنوب مغربی ایشیا کے لیے پروازوں کا غلبہ ہے۔ ایئر لائن میں 5 شہروں کی خدمت کرتا ہے، اگرچہ وشنیا تھائی خدمات انجام دینے والی پہلی ایشیا پیسیفک ہوائی کمپنی تھیلنڈن ہیتھرو ہوائی اڈا ایشیا پیسیفک کیریئر میں اس کمپنی کے پاس یورپ میں سب سے بڑے مسافر خانے ہیں۔ 2020 تک تھائی چلتا ہے سب سے طویل راستہ بینکاک سورونابومی 5933 میٹر ہے۔ ایئرپورٹ سے لندن ہیتھرو ہوائی اڈا 2019 کے آخر تک اس کے 22,054 ملازمین میں سے 1,438 پائلٹ تھے۔ 9 نمبر پہ آتا ہے لفٹھانسا۔ اس کی اپنی خدمات اور مالک ماتحت ادارے مسافر ایئر لائنز کے علاوہ آسٹرین ایئر لائنز، سوئس انٹرنیشنل ایئر اس کے طور پر یوروونگز لائنز، برسلز ایئر لائنز اور لفٹھانسا کی طرف سے انگریزی میں کہا جاتا مسافر ڈوئچے لفٹھانسا اے جی جیسے کئی ایئر لائن گروپ ہوابازی سے متعلق کمپنیوں مالک لفٹھانسا ٹینک اور ایل ایس جی اسکائی شیفز اور لفٹھانسا گروپ کے ایک حصے کے طور پر مجموعی طور پر اس گروپ کے پاس 700 سے زیادہ ہوائی جہاز ہے، جو اس دنیا کا سب سے بڑا ایئر لائن بیڑے میں شامل کرتا ہے کے رجسٹرڈ دفتر اور کارپورٹ ہیڈ کوارٹرز لفٹھانسا میں کولن۔ لفٹھانسا ایویئیشن سینٹر کے نام سے جانا جاتا مرکزی آپریشن اڈا لفٹھانسا کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ کے بنیادی مرکز میں ہے اور اس کا ثانوی مرکز میونخ ہوائی اڈے پر ہے، جہاں ایک سیکنڈری فلائٹ آپریشن سینٹر برقرار ہے۔ 8 نمبر پہ آتا ہے قنطس ایئر ویز، جو کہ ایک آسٹریلوی جہاز کی کمپنی ہے۔ ایئر لائن سڈنی ہوائی اڈے پر اس کے مرکزی مرکز سے متصل سڈنی کے مضافاتی علاقے ماسکوٹ میں واقع ہے۔ مارچ 2014 تک قنطس کا آسٹریلیائی گھریلو مارکیٹ میں 65% حصہ تھا اور اس نے آسٹریلیائی اور باہر جانے والے تمام مسافروں میں سے 14.9% کو لے لیا تھا۔ مختلف ذیلی ادارہ ایئر لائنز علاقائی مرکز اور آسٹریلیا کے اندر کچھ ٹرنک راستوں پر قنطس لنک کے بینرز کے تحت چلتی ہے۔ قنطس جیٹ اسٹار کے بھی مالک ہے، جو ایک کم لاگت ہوائی کمپنی ہے جو آسٹریلیا سے بین الاقوامی خدمات اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اندر اندرونی خدمات دونوں چلاتی ہے اور جس تجارت برانڈز ایئر لائنز کی ایک بڑی تعداد میں داؤ پر لگا ہے۔ 7 نمبر پہ آتا ہے ہائنان ایئر لائنز۔ ہائنان ایئر لائنز اکتوبر 1989 میں چین کی سب سے بڑی خصوصی معاشی زون ہائنان میں ہائنان صوبہ ایئر لائنز کے طور پر قائم کی گئی تھی۔ ہائنان صوبہ ایئر لائنز جنوری 1993 میں تنظیم نو کے بعد چین کی پہلی مشترکہ اسٹاک ہوائی نقل و حمل کی کمپنی بن گئی اور 2 مئی 1993 کو شیڈول خدمات کا آغاز کیا۔ ابتدائی 250 ملین یو این ہائنان حکومت نے مالی اعانت کے لیے فراہم کی اور کارپوریٹ عملہ 20% باقی اداروں کی حصص داروں کی طرف سے آئے تھے۔ 1996 میں صوبائی ایئر لائن کا نام ہائنان ایئر لائنز رکھ دیا گیا۔ جارج سورٹس کے زیر کنٹرول امریکی ایویئیشن LLC 1995 سے ہی ایئر لائن کا ایک اہم شیئر ہولڈر تھا۔ ایک بمبارڈیر لیجر 55 کے ساتھ ایگزیکٹو جیٹ آپریشن اپریل 1995 میں شامل کیا گیا تھا۔ 1998 میں ہائنان ایئر لائن ایئرپورٹ میں حصص رکھنے والا پہلے چینی کیریئر بن کے آف گیا جب اس نے ہاکو میلان بین الاقوامی ہوائی اڈا 25% حصص حوالہ کی ضرورت خرید لیا۔ 6 نمبر پہ آتا ہے ایوا ایئر۔ جب سے 1998 میں جہاز رانی کی جماعت ایور گرین گروپ کی وابستگی کی حیثیت سے اس کی تشکیل ہوئی، ایوا ایئر نے ایئر کارگو، ایئر لائن کیٹرنگ، زمینی EV ہینڈلنگ اور ہوابازی کی انجینئرنگ خدمات شامل کرنے میں توسیع کی ہے۔ اس کا کارگو بازو ایوا ایئر کارگو سمندر اور زمین پر سدا بہار دنیا بھر میں شپنگ نیٹ ورک سے ربط رکھتا ہے۔ اس کا گھریلو اور علاقائی ذیلی ادارہ UNI ایئر تائیوان، مکاؤ اور چین کے مقامات پر درمیانے اور قلیل فاصلے کا نیٹ ورک چلاتا ہے، جس کا مرکزی مرکز تائیوان کے کوہسونگ میں ہے۔ جنوری 2018 تک ایوا ایئر دنیا کی 15ویں سب سے محفوظ ایئر لائن ہے، جس کے قیام کے بعد سے کسی قسم کے نقصانات، حادثات یا اموات نہیں ہو سکتی ہے۔ ایوا ایئر ایئر بس اور بوئنگ طیاروں کا ملا جلا بیڑا چلاتا ہے، جس میں ایئر بس A330، ایئر بس A321،
बोइंग 777, बोइंग 787 और ATR 72 UNI एयर के जरिए चलने वाला हवाई जहाज उम्दा तौर पर मुसाफिर रास्तों पर इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही बोइंग 777 बरदार तैयार कार्गो पर इस्तेमाल होता है। रास्ते एयरलाइन प्रीमियर इकोनॉमी क्लास मुतारिफ करवाने वाले पहले कैरियर में सबसे एक था। इससे कबल ईवा एयर के जरिए एलिट क्लास कहा जाता था, जिसने इसका आगाज़ 1991 में किया। 5th नंबर पे आता है एमिरेट्स एयरलाइन। मुसाफिरों से किलोमीटर की तयशुदा आमदनी के जरिए इमारात दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन है और माल बरदार टन किलोमीटर के हिसाब से दूसरी बड़ी कंपनी है। सन 1980 की दहाई के वसत के दौरान गल्फ एयर ने दुबई में अपनी खिदमात को ख़त्म करना शुरू किया। इसके नतीजे में मार्च 1985 में इमारात का तस्वुर दुबई के शाही कुंबा की हिमायत से हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एयरलाइन का पहला तैयारा गैलेलेस पर फराहम किया। इब्तदाई $10 मिलियन के सरमाए के साथ सरकारी सब्सिडी से आज़ादाना तौर पर चलाने की ज़रूरत थी। PIA ने अपनी अकेडमी में इमारात के केबिन अमले को तरबियत की सहूलियत फराहम की। एयरलाइन की सरबराही अहमद बिन सईद अल मखतूम ने की। एयरलाइन का मौजूदा चेयरमैन इसके क़याम के बाद सालों एयरलाइन ने अपने बेड़े और अमथी मंजिलें दोनों को वसअत दी। अक्टूबर 2008 में इमारात दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तमाम ऑपरेशंस को टर्मिनल 3 में मुंतकिल कर दिया गया। इमारात एयरबस और बोइंग वसी बॉडी तैयारी का मिला जुला बेड़े चढ़ाती है और ऑल वाइड बॉडी हवाई जहाज के बेड़े एमिरेट्स एग्जीक्यूटिव को छोड़कर काम करने वाली चंद एयरलाइंस में से एक है। फरवरी 2019 तक इमारात सबसे बड़ी ऑपरेटर है, जिसकी खिदमत में A380 से बड़ा एयरबस 115 तैयारे और मजीद 8 ऑर्डर है। अपने तारुफ के बाद इमारात के बेड़े का एक लाजमी हस A380 से एयरबस बन गया है। खास तौर पर तवील फासले पर मसाफत लॉन्ग वाले रास्तों पर इमारात 155 तैयारों की खिदमत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बोइंग 777 ऑपरेटर भी है। कंपनी का ख्याल भी के नारों में फ्लाई इमारात अपने आप से अच रखे दुबई से पूरी दुनिया की मंजिलों तक दरियाफ्त करते रहे है लोकल और फिलहाल फ्लाई इमारात फ्लाई बेटर है। 4th नंबर पे आता है कैथे पैसिफिक। एयरलाइन की बुनियाद 24 सितंबर 1946 को ऑस्ट्रेलियाई सिडनी HD कांट्रोस और अमेरिकी राइसी फार्ल ने रखी थी। एयरलाइन ने अपनी 70वीं सालगिरह 2016 में मनाई थी और मार्च 2018 तक इसके बड़े हसस याफ्तगान सीवियर पैसिफिक है, जिसमें 45% दाव पर लगा हुआ है और एयर चेन 29% दाव पर लगा है। कैथे पैसिफिक दुनिया की 5वीं बड़ी एयरलाइन है जो फरोख्त के हिसाब से पैमाइश की जाती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए मापा जाने वाला 14वां बड़ा इदारा है। 2010 में कैथे पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी कार्गो एयरलाइन बन गया। इसके साथ मरकज़ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल हुआ, क्योंकि कार्गो ट्रैफिक से नापने जाने वाला दुनिया का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है। कंपनी का नारा आगे बढ़ाना है। ये वन वर्ल्ड इत्तेहाद के बानी मेंबरों में से एक। 3rd नंबर पे आता है ऑल निप्पॉन एयरवेज। इसकी मेन लाइन की कार्रवाइयों के अलावा ANA की कई ज़िली इदारा मुसाफिर कैरियर कंट्रोल करता है। इस समेत इलाकाई एयरलाइन ANA के पंख एयर निप्पॉन एयर करो एक कम लागत कैरियर के दरमियान शेड्यूल सर्विस कार्गो, ALX ऑपरेटिंग टोक्यो और शहर होकाइडो और ANA कार्गो एयर जापान के जरिए चलने वाला माल बरदार डिवीज़न। ANA पेज में सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है। हांगकांग की कंपनी फर्स्ट ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ कम लागत वाला कैरियर मुश्तरक का मंसूबा है। अक्टूबर 1999 में एयरलाइन स्टार एलायंस का रुकन भी बन गया। 29 मार्च 2013 को स्काई ट्रेक के जरिए ANA को 5 स्टार एयरलाइन का नाम दिया गया। 27 अप्रैल 2018 को ANA ने निजी जेट चार्टर परवाज़ों की पेशकश के लिए स्विजिटर्स के साथ मुश्तरक मंसूबे ANA बिजनेस जेट कंपनी लिमिटेड का ऐलान भी किया। 2nd नंबर पे आता है सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस में एयरलाइन से वाबस्ता कई ज़िली तंजीमें शामिल हैं। ASI इंजीनियरिंग कंपनी 9 ममालिक में बहाली मुरम्मत और हाल MRO कारोबार संभालती है, जिसमें 27 मुश्तरका मंसूबों का एक पोर्टफोलियो है, जिसमें बोइंग और रोल्स रॉयस शामिल है। सिंगापुर एयरलाइन का कार्गो ASI खबरदार बहरी कार्गो होल्ड गुंजाइश का इंतजाम करता है। इसकी 2 ज़िली तंजीमें हैं। सिर्फ एयर 97 शहरों के लिए इलाकाई परवाज़ें चलाता है। स्कॉट एक कम वाले कैरियर
के तौर पर काम करता है। सिंगापुर एयरबस A380 यानी दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा बोइंग 10,787 और एयरबस A900-350 का इंतहाई तवील फासले तक पहुंचाने वाला सारिफ था। इसके लिहाज से 15 कैरियर्स दुनिया भर में सबके दरमियान सफ़ो आमदनी मुसाफिर किलोमीटर और कई गए बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए दुनिया भर में 10वें नंबर पर है। दुनिया स्काई ट्रेक्स सिंगापुर एयरलाइंस के तौर पर वोट किया गया कि बेहतरीन एयरलाइन केन अमला 2019 एयरलाइन के तौर पर भी दुनिया के बेहतरीन एयरलाइंस दूसरे और चौथे पोजीशन हासिल की और दुनिया के साफ एयरलाइंस बालतरीब 2019 है। फर्स्ट नंबर पे आता है कतर एयरवेज। इस एयरलाइन का कयाम 22 नवंबर 1993 को हुआ था। ऑपरेशन 20 जनवरी 1994 को शुरू हुए। ओमान को पहली बार 1994 में पेश किया गया था। अप्रैल 1995 में एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव शेख हम्माद बिन अली बिन जबूर अल-तानवी थे, जिन्होंने 75 के अमले को मुलाजिम रखा था। इस वक्त तक इस बेड़े में 2 एयरबस A310 पर मुश्तमिल था, जिसने रूट नेटवर्क पर काम किया, जिसमें अबू धाबी, बैंकॉक, कायरा, दुबई, खर्तूम, कुवैत, लंदन, मदारिस, मनीला, मुशक्कत, ओसाका, शारजा, ताइपाई, टोक्यो और तरविंदम शामिल है। 1995 के दौरान 2 साबिक से खरीदे गए हुएंग ऑल निप्पॉन एयरवेज बोइंग 747 एयरलाइन ने 1996 में एयर मॉरिशस से सेकंड हैंड बोइंग 747 SP हासिल किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पर मबनी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेलीलिंक बाय हम्माद में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, वो भी क्या वक्त था जब इंसान घंटों का सफ़र दिनों में तय करता था, मगर जब दुनिया ने तरक्की करना शुरू की तो इंसान ने भी इजादात बनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इंसान ने एक बहुत अहम इजाद, जिसको आजकल के दौर में जहाज़ कहा जाता है, इजाद कर दिया। दोस्तों, जहाज़ के ज़रिए हम दुनिया भर में किसी भी कोने में जा सकते हैं, सिर्फ घंटों में या थोड़ी सी मिनट्स में। दोस्तों, जहाज़ की कंपनीज हर साल करोड़ों डॉलर्स कमाती है अपने इस मुनाफा बख्श कारोबार की वजह से। चुनांचे आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 बेस्ट एयरलाइन कंपनीज के बारे में बताऊंगा और उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में भी। तो हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। 10 नंबर पे आता है थाईलैंड का एक एयरवे, थाई एयरवेज। थाई सरोनाबोमी एयरपोर्ट और सानवी मरकज़ फोकट बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर अपने मरकज़ से काम करती है। एयरलाइन और इसके ज़िली इदारों ने 95 तैयारों के बेड़े का इस्तेमाल करते हुए 37 ममालिक में 101 से ज़्यादा मंजिलें तय की, जो बोइंग और एयरबस दोनों के वसी जिस्म वाले तैयारे पर मुश्तमिल है, जबकि मातहत इदारा थाई मस्कराहट तंग जिस्म तैयारे चलाती है। 2013 तक बैंकॉक और लॉस एंजलिस के माबेन सिविल के करीब एंजोइन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ज़रिए खिदमत अंजाम दी गई। ताहम ये 25 पर अमरीका को इस सर्विस को ख़त्म होने अक्टूबर 2015 थाईलैंड का रूट नेटवर्क यूरोप, वस्ती एशिया और जुनूब मगरबी एशिया के लिए परवाज़ों का गुलबा है। एयरलाइन में 5 शहरों की खिदमत करता है, अगरचे वशनिया थाई खिदमत अंजाम देने वाली पहली एशिया पैसिफिक हवाई कंपनी थैलेंडन हेथरो हवाई अड्डा। एशिया पैसिफिक कैरियर में इस कंपनी के पास यूरोप में सबसे बड़े मुसाफिर खाने हैं। 2020 तक थाई चलता है सबसे तवील रास्ता बैंकॉक सरोनाबोमी 5,933 मीटर है। एयरपोर्ट से लंदन हेथरो हवाई अड्डा 2019 के आखिर तक इसके 22,054 मुलाजिमीन में से 1,438 पायलट थे। 9 नंबर पे आता है लुफ्थांसा। इसकी अपनी खिदमत और मालिक मातहत इदारे मुसाफिर एयरलाइंस के अलावा ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, स्विस इंटरनेशनल एयर इसके तौर पर यूरोविंग्स लाइन्स, ब्रसेल्स एयरलाइंस और लुफ्थांसा की तरफ से अंग्रेजी में कहा जाता मुसाफिर डॉयचे लुफ्थांसा AG जैसे कई एयरलाइन ग्रुप हवाबाजी से मुतल्लिक कंपनियों मालिक लुफ्थांसा टैंक और LSG स्काई शेफ्स और लुफ्थांसा ग्रुप के एक हिस्से के तौर पर। मजमूई तौर पर इस ग्रुप के पास 700 से ज़्यादा हवाई जहाज़ है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइन बेड़े में शामिल करता है।
के रजिस्टर्ड दफ्तर और कारपोर्ट हेडक्वार्टर्स लुफ्थांसा में कोलोन लुफ्थांसा एविएशन सेंटर के नाम से जाना जाता मरकजी ऑपरेशन अड्डा लुफ्थांसा के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के बुनियादी मरकज में है और इसका सानवी मरकज म्यूनिख हवाई अड्डे पर है, जहां एक सेकेंडरी फ्लाइट ऑपरेशन सेंटर बरकरार है। 8 नंबर पे आता है कंतस एयरवेज, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई जहाज की कंपनी है। एयरलाइन सिडनी हवाई अड्डे पर इसके मरकजी मरकज से मुस्तसिल सिडनी के मज़ाफ़ती इलाके मास्कोट में वाक़ है। मार्च 2014 तक कंटस का ऑस्ट्रेलियाई घरेलू मार्केट में 65% हिस्सा था और इसने ऑस्ट्रेलियाई और बाहर जाने वाले तमाम मुसाफिरों में से 14.9% को ले लिया था। मुख्तलिफ ज़िली अदारा एयरलाइंस इलाकाई मरकज़ और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ ट्रंक रास्तों पर कंटस लिंक के बैनर्स के तहत चलती है। कंटस जेट स्टार के भी मालिक है, जो एक कम लागत हवाई कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया से बैनुल अक़वामी खिदमात और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर अंदरूनी खिदमात दोनों चलाती है और जस्टजार ब्रांड्स एयरलाइंस की एक बड़ी तादाद में दाव पर लगा है। 7 नंबर पे आता है हाइनाइन एयरलाइंस। हाइनाइन एयरलाइंस अक्टूबर 1989 में चीन की सबसे बड़ी खुसूसी मुआशी जोन हाइनाइन में हाइनाइन सूबा एयरलाइंस के तौर पर कायम की गई थी। हाइनाइन सूबा एयरलाइंस जनवरी 1993 में तंजीम 9 के बाद चीन की पहली मुश्तरका स्टॉक हवाई नकलो हमल की कंपनी बन गई और 2 मई 1993 को शेड्यूल खिदमात का आगाज़ किया। इब्तदाई 250 मिलियन UN हैनान हुकूमत ने माली एआउनत के लिए फराहम की और कारपोरेट अमला 20% बाकी इदारों की खसदारों की तरफ से आए थे। 1996 में सूबाई एयरलाइन का नाम हाइनाइन एयरलाइंस रख दिया गया। जॉर्ज सोरोस के ज़ेर कंट्रोल अमरीकी एविएशन LLC 1995 से ही एयरलाइन का एक अहम शेयर होल्डर था। एक बम्बार्डियर लेजर्ड 55 के साथ एग्जीक्यूटिव जेट ऑपरेशन अप्रैल 1995 में शामिल किया गया था। 1998 में हैनान एयरलाइन एयरपोर्ट में हंस रखने वाले पहले चीनी कैरियर बन के ऑफ गया जब उसने हाको मिलान बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा 25% हंस हवाले की ज़रूरत खरीद लिया। 6 नंबर पे आता है ईवा एयर। जब से 1998 में जहाज रानी की जमात एवरग्रीन ग्रुप की वाबस्तगी की हैसियत से इसकी तश्कील हुई। ईवा एयर ने एयर कार्गो, एयरलाइन कैटरिंग, ज़मीनी EV हैंडलिंग और हवाबाजी की इंजीनियरिंग खिदमात शामिल करने में तोसी की है। इसका कार्गो बाजू ईवा एयर कार्गो समुंदर और ज़मीन पर सदाबहार दुनिया भर में शिपिंग नेटवर्क से रबत रखता है। इसका घरेलू और इलाकाई ज़िली इदारा UNI एयर ताइवान, मकाऊ और चीन के मकामात पर दरमियाने और कलील फासले का नेटवर्क चलाता है, जिसका मरकजी मरकज़ ताइवान के कोहसोंग में है। जनवरी 2018 तक ईवा एयर दुनिया की 15वीं सबसे महफूज एयरलाइन है, जिसके क़याम के बाद से किसी किस्म के नुकसानात, हादसात या अमवात नहीं हो सकती है। ईवा एयर एयरबस और बोइंग तैयारों का मिला जुला बेड़ा चलाता है, जिसमें एयरबस A330, एयरबस A321, बोइंग 777, बोइंग 787 और ATR 72 UNI एयर के ज़रिए चलने वाला हवाई जहाज़ उम्दा तौर पर मुसाफिर रास्तों पर इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही बोइंग 777 बरदार तोयार कार्गो पर इस्तेमाल होता है। रास्ते एयरलाइन प्रीमियर इकोनॉमी क्लास मुतारिफ करवाने वाले पहले कैरियर में सबसे एक था। इससे कबल ईवा एयर के ज़रिए एलिट क्लास कहा जाता था, जिसने इसका आगाज़ 1991 में किया। 5 नंबर पे आता है एमिरेट्स एयरलाइन। मुसाफिरों से किलोमीटर की तयशुदा आमदनी के ज़रिए इमारात दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन है और माल बरदार टन किलोमीटर के हिसाब से दूसरी बड़ी कंपनी है। सन 1980 की दहाई के वसत के दौरान गल्फ एयर ने दुबई में अपनी खिदमात को ख़त्म करना शुरू किया। इसके नतीजे में मार्च 1985 में इमारात का तसव्वुर दुबई के शाही कुंबा की हिमायत से हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एयरलाइन का पहला तैयारा गैलेलेस पर फराहम किया। इब्तदाई $10 मिलियन के सरमाए के साथ सरकारी सब्सिडी से आज़ादाना तौर पर चलाने की ज़रूरत थी। PIA ने अपनी अकेडमी में इमारात के केबिन अमले को तरबियत की सहूलियत फराहम की। एयरलाइन की सरबराही अहमद बिन सईद अल मखतूम ने की। एयरलाइन का मौजूदा चेयरमैन इसके क़याम के बाद सालों एयरलाइन ने अपने बेड़े और अमथी मंजिलें दोनों को वसअत दी। अक्टूबर 2008 में इमारात दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तमाम ऑपरेशंस को टर्मिनल 3 में मुंतकिल कर दिया गया। इमारात एयरबस और बोइंग वसी बॉडी तैयारी का मिला जुला बेड़े चलाती है और ऑल वाइड बॉडी हवाई जहाज़ के बेड़े
एमिरेट्स एग्जीक्यूटिव को छोड़कर काम करने वाली चंद एयरलाइंस में से एक है। फरवरी 2019 तक इमारात सबसे बड़ी ऑपरेटर है, जिसकी खिदमत में A380 से बड़ा एयरबस 115 तैयारे और मजीद 8 आर्डर है। अपने तारुफ के बाद इमारात के बेड़े का एक लाजमी हिस्सा A380 से एयरबस बन गया है। खास तौर पर तवील फासले पर मसाफत लॉन्ग वाले रास्तों पर इमारात 155 तैयारों की खिदमत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बोइंग 777 ऑपरेटर भी है। कंपनी का ख्याल भी के नारों में फ्लाई इमारात अपने आप से अच रखे दुबई से पूरी दुनिया की मंजिलों तक दरियाफ्त करते रहे है लोकल और फिलहाल फ्लाई इमारात फ्लाई बेटर है। फोर्थ नंबर पे आता है कैथे पैसिफिक। एयरलाइन की बुनियाद 24 सितंबर 1946 को ऑस्ट्रेलियाई सिडनी HD कॉन्ट्रोस और अमेरिकी रायसी फार्ल ने रखी थी। एयरलाइन ने अपनी 70वीं सालगिरह 2016 में मनाई थी और मार्च 2018 तक इसके बड़े हसस याफ्तगान सीवियर पैसिफिक है, जिसमें 45% दाव पर लगा हुआ है और एयर चेन 29% दाव पर लगा है। कैथे पैसिफिक दुनिया की 5वीं बड़ी एयरलाइन है जो फरोख्त के हिसाब से पैमाइश की जाती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए मापा जाने वाला 14वां बड़ा इदारा है। 2010 में कैथे पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी कार्गो एयरलाइन बन गया। इसके साथ मरकज हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल हुआ, क्योंकि कार्गो ट्रैफिक से नापने जाने वाला दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है। कंपनी का नारा आगे बढ़ाना है। ये वन वर्ल्ड इत्तेहाद के बानी मेंबरों में से एक। थर्ड नंबर पे आता है ऑल निप्पॉन एयरवेज। इसकी मेन लाइन की कार्रवाइयों के अलावा ANA की कई ज़िली इदारा मुसाफिर कैरियर कंट्रोल करता है। इस समेत इलाकाई एयरलाइन ANA के पंख एयर निप्पॉन एयर करो एक कम लागत कैरियर के दरमियान शेड्यूल सर्विस कार्गो, ALX ऑपरेटिंग टोक्यो और शहर होकाइडो और ANA कार्गो एयर जापान के जरिए चलने वाला माल बरदार डिवीजन। ANA पेज में सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है। हांगकांग की कंपनी फर्स्ट ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ कम लागत वाला कैरियर मुश्तरक का मंसूबा है। अक्टूबर 1999 में एयरलाइन स्टार एलायंस का रुकन भी बन गया। 29 मार्च 2013 को स्काई ट्रेक के जरिए ANA को 5 स्टार एयरलाइन का नाम दिया गया। 27 अप्रैल 2018 को ANA ने निजी जेट चार्टर परवाज़ों की पेशकश के लिए स्विजिटर्स के साथ मुश्तरक मंसूबे ANA बिजनेस जेट कंपनी लिमिटेड का ऐलान भी किया। सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस में एयरलाइन से वाबस्ता कई ज़िली तंजीमें शामिल हैं। ASI इंजीनियरिंग कंपनी 9 ममालिक में बहाली, मुरम्मत और हाल MRO कारोबार संभालती है, जिसमें 27 मुश्तरका मंसूबों का एक पोर्टफोलियो है, जिसमें बोइंग और रोल्स रॉयस शामिल है। सिंगापुर एयरलाइन का कार्गो ASI खबरदार बहरी कार्गो होल्ड गुंजाइश का इंतजाम करता है। इसकी 2 ज़िली तंजीमें हैं। सिर्फ एयर सानवी शहरों के लिए इलाकाई परवाजें चलाता है। स्कॉट एक कम वाले कैरियर के तौर पर काम करता है। सिंगापुर एयरबस A380 यानी दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा बोइंग 10,787 और एयरबस A900 350 का इंतहाई तवील फासले तक पहुंचाने वाला सारिफ था। इसके लिहाज से 15 कैरियर्स दुनिया भर में सबके दरमियान सफ़ो आमदनी मुसाफिर किलोमीटर और कई गए बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए दुनिया भर में 10वें नंबर पर है। दुनिया स्काई ट्रेक्स सिंगापुर एयरलाइंस के तौर पर वोट किया गया कि बेहतरीन एयरलाइन केन अमला 2019 एयरलाइन के तौर पर भी दुनिया के बेहतरीन एयरलाइंस दूसरे और चौथे पोजीशन हासिल की और दुनिया के साफ एयरलाइंस बालतरीब 2019 है। फर्स्ट नंबर पे आता है कतर एयरवेज। इस एयरलाइन का कयाम 22 नवंबर 1993 को हुआ था। ऑपरेशन 20 जनवरी 1994 को शुरू हुए। ओमान को पहली बार 1994 में पेश किया गया था। अप्रैल 1995 में एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव शेख हम्माद बिन अली बिन जबूर अल तानवी थे, जिन्होंने 75 के अमले को मुलाजिम रखा था। इस वक्त तक इस बेड़े में 2 एयरबस A310 पर मुश्तमिल था, जिसने रूट नेटवर्क पर काम किया, जिसमें अबू धाबी, बंकाक, कायरा, दुबई, खर्तूम, कुवैत, लंदन, मदारिस, मनीला, मुसक़त, ओसाका, शारजा, ताइपाई, टोक्यो और तरविंदम शामिल है। 1995 के दौरान 2 साबिक से खरीदे गए हुए ऑल निप्पॉन एयरवेज बोइंग 747 एयरलाइन ने 1996 में एयर मॉरिशस से सेकंड हैंड बोइंग 747 SP हासिल किया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पर मबनी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं।